Hello everyone, welcome to today's lesson. I hope you are doing well. In this video, we are learning about maxillary artery and its branch. It is a very important and interesting topic for your NEET MDS and also for your exam point of view at the BDS lab. Okay, so its branches and in simplified version so that you can remember easily their branches. First of all, maxillary artery is a terminal branch of external carotid artery. It is the largest terminal branch of maxillary external carotid artery. Okay, your common carotid artery is divided into internal carotid artery and external carotid artery. And external carotid artery give the terminal branches, two terminal branches, maxillary artery and superficial temporal artery. So in this video, we are talking about maxillary artery in detail, its branches. So first of all, maxillary artery, from where it arise. Maxillary artery arises behind the neck of the mandible. It is first embedded in the substance of parotid gland. Okay, it is divided into three parts: mandibular part. First part is the mandibular part. Second part is the pterygoid part, and third part is the pterygopalatine part. So 1 minute. So maxillary artery arises from here, arise behind the neck of the mandible. This is the neck, and from there it arises maxillary artery, from which it divided into three parts: mandibular part, pterygoid part and pterygopalatine part. ठीक है, फर्स्टली जो फर्स्ट पार्ट है, इट इज़ एम्बेडेड इन द सब्सटेंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड. It is passes between the ramus of mandible and the spinomandibular ligament. I will show you. This is the spinomandibular ligament and the ramus of mandible. This is the ramus of mandible and यहाँ पे spinomandibular ligament कहाँ पे joint होता है? Spinomandibular in the lingula. तो inferior side sphenoid bone and the mandibular के साथ जो joint होता है उसके बीच में जो जा रही है वो क्या है? Mandibular part. Okay, mandibular part. So this is the mandibular part between the ramus of the mandible. This is the ramus and spinomandibular ligament यहाँ से आता है. इनके बीच में जो पार्ट हमारा जा रहा है यहाँ से नेक ऑफ द मैंडिबुलर के बीच में से जाके वो क्या है? मैंडिबुलर पार्ट. मैंडिबुलर पार्ट की ब्रांचेस क्या क्या होती हैं वो हम बात करते हैं अभी. बिफोर यहाँ पे लेटरल टीरिगोइड मसल होती है ना. लेटरल टीरिगोइड मसल कहाँ पे होती है? टीरिगोइड फोविया पे अटैच होती है कॉन्डाइल के. तो उससे पहले जो आती है वो होती है हमारी ब्रांच. उसके अंदर देखिए ये 5 ब्रांचेस देती है मैंडिबुलर पार्ट. फर्स्ट ब्रांच इज़ द डीप ऑरिकुलर ब्रांच, डीप ऑरिकुलर आर्टरी, और वो कहाँ पे जाती है? स्क्वैमो टिम्पैनी फिशर के थ्रू जाएगी एंड सप्लाई द टीएमजे एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल. टीएमजे एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल. तो ये आप देख ही रहे हैं उसके पास क्या होगा? डीप ऑरिकुलर है, ऑरिकल को सप्लाई करेगी. तो ऑरिकल में एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल एंड टीएमजे. नेक्स्ट ब्रांच इज द एंटीरियर टिम्पैनी, नेम शोन पेट्रो टिम्पैनिक फिशर के थ्रू जाएगी एंड सप्लाई the tympanic cavity. Next is the middle meningeal artery. Middle meningeal artery passes through the foramen spinosum and supply the calvaria, dura, anterior. Calvaria क्या होता है? Calvaria is the skull cap. And dura matter को सप्लाई करेगी anterior and middle cranial fossa. Okay. Next is this branch कौन सी होगी इसकी? Next is the inferior alveolar. Inferior alveolar artery passes through the inferior alveolar foramen. ठीक है, इसकी एक ब्रांच भी होती है माइलोइड आर्टरी. तो वो माइलोइड मसल को सप्लाई करती है. तो inferior alveolar artery supply the mandibular teeth and gingiva. Okay, this is the branch of mandibular part. Clear? One remaining branch is also there. I will show you diagram. maxillary artery मेन एक ब्रांच रह गई है हमारी एसेसरी मेनिंजियल. ठीक है, एसेसरी मेनिंजियल इज ऑल्सो इज ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर पार्ट. एसेसरी मेनिंजियल, ठीक है, विच ऑल्सो गिव ब्रांच टू मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन. ठीक है, और सप्लाई करेगी उसको एंड इट्स पासिस थ्रू द फोरामेन ओवेल.
ठीक है, किसकी ब्रांच होती है ये? ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी मैंडिबुलर पार्ट की। तो एसेसरी मेनिंजियल, क्योंकि फोरामेन ओवल से कौन सी पास करती है, तो ये काफ़ी टाइम हमारे से पूछा जाता है पेपर में, तो ये इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको दिखाई। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इज़ द टिरिगोइड पार्ट। टिरिगोइड पार्ट इज़ मेनली मस्कुलर। ये कहाँ पे है? टिरिगोइड पार्ट्स इधर सुपरफिशियल और डीप टू द लोअर हेड ऑफ लेटरल टिरिगोइड मसल। तो सही है, लेटरल टिरिगोइड मसल से ही मतलब रिलेशन होती है, लेटरल और विद इन द लेटरल टिरिगोइड मसल। ठीक है, तो ये देती है, इसकी ब्रांचेस होती हैं 4। फर्स्ट इज़ द मेसेट्रिक आर्टरी। तो मसल ऑफ मैस्टिकेशन को वो ब्रांचेस देती है, तो मसल ऑफ मैस्टिकेशन इज़ 4। मेसेटर मसल, डीप टेम्पोरलिस मसल, लेटरल टिरिगोइड मसल एंड मीडियल टिरिगोइड मसल। तो डीप टेम्पोरल गिव ब्रांचेस, डीप टेम्पोरल ब्रांच किसको देगी? डीप टेम्पोरलिस मसल को देगी। एंड मेसेट्रिक ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट हमारा क्या है? टिरिगोइड पार्ट, सेकंड पार्ट, जो कि हमारा लेटरल टिरिगोइड की सुपरफिशियल होगा या फिर डीप होएगा, हेड, लोअर हेड ऑफ द लेटरल टिरिगोइड मसल। ठीक है, तो डीप टेम्पोरल इस मसल को देगी। मस्कुलर ब्रांचेस होएंगी। मस्कुलर ब्रांचेस में क्या क्या आएगी? तो मेसेट्रिक आर्टरी बोला है मैंने, एक डीप टेम्पोरल होगी, एंड देन टिरिगोइड ब्रांचेस यानी टेरिगोइड मसल को, एंड एक बक्कल आर्टरी होगी, एंड दिस इज सप्लाई टू द बक्कल म्यूकोसा। ठीक है, ये 4 ब्रांचेस है टिरिगोइड की। थर्ड पार्ट एंटर इनटू द टिरिगोपैलेटाइन, ये है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट एंटर इनटू दी, थर्ड पार्ट में क्या होगा? थर्ड पार्ट को बोलते हैं टिरिगोपैलेटाइन पार्ट। टिरिगोपैलेटाइन पार्ट एज नेम सजेस्ट एंटर इनटू टिरिगोपैलेटाइन फोसा बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ लेटरल टिरिगोइड मसल। ठीक है, किसके? 2 हेड्स ऑफ लेटरल टिरिगोइड मसल और थ्रू टिरिगोमैक्सिलरी फिशर के थ्रू वो पास करेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट जो होगी। ठीक है, ये जो है आपका थर्ड पार्ट है, इसके थ्रू यहाँ से पास करेगा, ये यहाँ से ये जो है टिरिगोमैक्सिलरी फिशर से पास करेगा, या फिर किससे पास करेगा? टिरिगोपैलेटाइन फोसा से। ठीक है, नाम से हमें पता चल रहा है टिरिगोपैलेटाइन पार्ट। तो इसकी है 6 ब्रांचेज हैं। सो इसके लिए हमारे पास निमोनिक है। फर्स्ट निमोनिक इज PIGPAS, pig pass is the mnemonic for the remembering the fly. ठीक है, टिरिगोपैलेटाइन पार्ट। तो फर्स्ट इज द पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर सप्लाई दी मैक्सिलरी मोलर्स, मैक्सिलरी साइनस एंड जिंजाइवा। ओके, किससे पास करेगी वो? पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी पासेस थ्रू द सेम, जो नेम है उसका, पोस्टीरियर एल्वियोलर्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास PI, पिग बोला ना मैंने, पिग, PI से क्या आएगा? इंट्राऑर्बिटल, और इंट्राऑर्बिटल आपकी हो जाएगी ये वाली, ऊपर वाली नेम मेंशन नहीं किया, ये इंट्राऑर्बिटल है। इंट्राऑर्बिटल फोरामेन से पास करेगी एंड सप्लाई दी मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ एंड जिंजाइवा एंड चीक बोन। ठीक है, इंफ्राऑर्बिटल नर्व, इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी, सॉरी। नेक्स्ट इज द G is greater palatine and lesser palatine. Greater and lesser palatine pass through the greater palatine foramen and lesser palatine foramen and supply the palatal mucosa. ठीक है, सप्लाई द पैलेटल म्यूकोसा। हार्ड पैलेट को सप्लाई करेगी, सॉफ्ट पैलेट को पैलेटाइन टॉन्सिल एंड फेरेंजियल वॉल्स। ठीक है, पैलेटाइन ग्रेटर एंड लेसर। पिग हो गया हमारे पास, पी से हो गया पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, इंफ्राऑर्बिटल, ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन 3 होगी। देन इज अ PAS पास। पी से क्या आएगी? हमारे फेरेंजियल आर्टरी, फेरेंजियल फेरेंग्स को सप्लाई करेगी। दिस इज फेरेंजियल पासिस थ्रू द पैलेटो वेजाइनल कैनाल। ठीक है, क्लियर? पासिस थ्रू पैलेटोवेजाइनल कैनाल। PAA से हमारी आर्टरी ऑफ टिरिगोइड, आर्टरी टू द टिरिगोइड कैनाल, टिरिगोइड कैनाल से जाएगी आर्टरी टू द टिरिगोइड कैनाल। ठीक है, आर्टरी टू द टिरिगोइड कैनाल। नेक्स्ट इज द
Spinopalatine, PAS, Spinopalatine foramen, Spinopalatine artery supply passes to Spinopalatine foramen and supply the lateral wall of nasal cavity, nasal concha and nasal septum. ठीक है, इसकी ब्रांचेस सप्लाई करेंगी, स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करेंगी हमारे नेटल वॉल ऑफ नेजल कैविटी, कॉन्के, नेजल सेप्टम. क्लियर? So let's revise again. So first is the maxillary artery. Maxillary artery lies behind the neck of mandible. Behind the neck of mandible, okay, it is a branch of external carotid artery and mainly it is a terminal branch of external carotid maxillary artery and superficial. So maxillary is the largest terminal branch. Maxillary artery is divided into three parts. First is the mandibular part, next is the pterygoid part, next is the third is the pterygopalatine part. तो मैंडिबुलर पार्ट जो है कि किसके बीच में पास करता है, स्पिनोपैलेटाइन, बिटवीन द रेमस ऑफ मैंडिबल एंड स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट के बीच में. सेकेंड पार्ट इज टेरिगोइड पार्ट विच सप्लाई द मसल ऑफ मैस्टिकेशन मेनली. तो 4 ब्रांचेज होंगी इसकी, मेसेट्रिक, डीप टेम्पोरल, टेरिगोइड एंड बक्कल आर्टरी. इन मैंडिबुलर पार्ट ऑल्सो है 5 ब्रांचेज. 5 ब्रांचेज कौन कौन सी हमारी, डीप ऑरिकुलर, एंटीरियर टिम्पैनी, deep auricular, anterior tympani and deep auricular, anterior tympani, middle meningeal, accessory meningeal, inferior alveolar. ठीक है, this is the mandibular की. Then muscle of mastication को पास करेगी एंड थर्ड इज द टेरिगोपैलेटाइन जो कि टेरिगोपैलेटाइन फोसा बिटवीन द 2 हेड ऑफ लेटरल टेरिगोइड, और हमारी जो बीच वाली होती है वो लेटरल टेरिगोइड के बीच में उसके थ्रू पास करती है, फिर सुपरफिशियल होगी या डीप होगी. तो टेरिगोपैलेटाइन के हमारे पास है 6 ब्रांचेज ऑफ टेरिगोपैलेटाइन. सिक्स ब्रांचेज हैं हमारी टेरिगोपैलेटाइन की. तो वो है सबसे पिग पास. तो पिग पास से पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, इंफ्राऑर्बिटल, जी से ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन, pharyngeal, artery to pterygoid canal and S spinopalatine. Okay, easily remember it. Clear? So with this we finish maxillary artery. Clear? In the next video we talk about the internal carotid artery, subclavian artery and its branches, supply structure and brain supply. Okay, circle of Willis के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, if you have any doubt you can comment on it. Do like, share and subscribe my channel. Please like, share, subscribe these videos and also press the bell button so you get the notification when I upload the new video for you. So it is a very important topic. Every year maxillary artery is the fourth, every question asked. Okay, its branches, its origin, it is a recent question. maxillary artery origin कहाँ पे होता है, behind the neck of the mandible. ठीक है, is important question and it's okay. So thank you everyone, enjoy.